Hello and welcome back to the channel. So this video has multiple parts. The first part will have me traveling from Ahmedabad to Delhi and then to Jammu. The thing is that I drove my car from Ahmedabad to Jammu and I took a stay in Delhi for one day. I didn't had enough time to capture moments or capture places. Whatever I have just edited that in the video. Hope you enjoy that, and the road and the whole traveling experience is totally awesome. The roads and the view are totally eye-watering, and if you go by road, you will see what I'm saying and how much beautiful total experience it is. And after that you will see the second part. In second part, I'm traveling from Jammu to Kashmir to my mother's homeland, which is in Kashmir. So there's a Kheer Bhavani temple, which is our mother. This just give you a brief itihas about this temple. This temple was established by Hanumanji himself after the Ramayana. Initially, Kheer Bhavani was with Ravan at that moment of time, and after the completion of the war between Ram and the Ravan, Ma requested that she should be placed in a place which is colder and which has people who are vegetarian and who are more sattvic than Ravan. So Hanumanji took him to this place, and which is now known as Kheer Bhavani temple. So it's a beautiful place in Kashmir. If you have visited this place, you will know what I'm saying. It's a beautiful spot. Everyone should go and visit, and every year I try to go and bow down to the mother and give my respects and ask for her blessing. It's a very very important place for Kashmiri Pandits, and every youth who is Kashmiri Pandit or just Hindu, just go there and watch this place, experience the aura, experience the vibe of this place. The third part will have Shiv Khori temple, which is in Jammu. So I'll just give you a brief itihas about it. The thing is that everyone knows कि Shivji was married to Sati, and Sati burned herself. So after that, Shivji took her body and started roaming around the world. ये चीज़ ना नारायण जी देख नहीं पाए, तो नारायण जी ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और सती की जो भी बॉडी थी बची हुई उसको पूरा कम्प्लीटली पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. सो जब सती जी की बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो शिव जी एक मेडिटेटिंग फॉर्म में चले जाते हैं, बिकॉज ही वॉज हर्ट दैट मच कि ही वॉज नॉट एबल टू बेयर दिस लॉस. सो जब वो उस मेडिटेटिंग फॉर्म में जाते हैं तो वो इस केव में आते हैं जो हम शिवखोरी बोलते हैं. सो इसका फैसिनेटिंग चीज़ क्या है इस केव की, ये केव के बारे में किसी को नहीं पता था. सो जब शिव जी स्टार्टेड मेडिटेटिंग, उन्होंने अपने आप को दुनिया से ही हाइड कर लिया था. तो दुनिया में कोई भी ब्रह्म जी हो या नारायण जी हो या कोई भी क्यों ना हो, वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे उस टाइम वो है कहाँ पे, बिकॉज जब तक शिव जी नहीं है तो एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता, एज ही इज़ अ डिस्ट्रॉयर. सो एवरीथिंग नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड सो दैट इट कैन बी रिक्रिएटेड. सो जब डिस्ट्रॉयर ही कहीं पे गायब है तो क्या करें. सो नारायण जी के पास सब देवगण असुर जी आते हैं कि भाई कहाँ पे है शिव जी. सो नारायण जी भी नहीं ढूंढ पाते, तो नारायण जी को जो सुदर्शन चक्र दिया है वो शिव जी ने दिया है. तो नारायण जी अपने सुदर्शन चक्र को बोलते हैं कि जाओ ज़रा शिव जी को ढूंढ के आओ. सो सुदर्शन चक्र पूरी दुनिया घूमता है, वो एंड ऑफ द डे शिव खोरी आता है. तो शिव खोरी में इनिशियली सुदर्शन चक्र छोटा सा होता है इन साइज, पर जब वो शिव जी की एनर्जी को सेंस करता है, वो एक माउंटेन में होल होता है, तो वो उसके अंदर अपने आप को डालना स्टार्ट करता है. तो जो ही वो अंदर जाता है, एंड ऑफ द डे वो उस माउंटेन के अंदर एक केव होती है जहाँ पे शिव जी खुद मेडिटेटिंग फॉर्म में बैठे होते हैं.
तो जो ही वो शिव जी के पास पहुंचता है, वो पहले छोटा था, फिर वो एक्सपैंड हो जाता है बहुत बड़ा। और जब आप शिवखोरी के अंदर, केव के अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे कि सुदर्शन चक्र के मार्क्स पूरे वहाँ पे बने हुए हैं। वो केव सुदर्शन चक्र ने ही बनाई है। सो वो एक यूनिक स्पॉट है। जब आप जाओगे, आप देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, आप कहोगे कि ये क्या है। इफ़ यू थिंक वाइजली एंड इफ़ यू थिंक प्रॉपरली कि there is something that we don't know, and we have to respect that, and we have to bow down to that energy or bow down to that place. And इसमें एक और फैसिनेटिंग चीज़ आती है कि जब आप शिवखोरी के टेंपल में जाओगे, टेंपल या केव में जाओगे, आप जब केव के अंदर होंगे, आप जब अपने लेफ्ट साइड से देखेंगे, वहाँ से एक और केव जा रही है, दैट इज़ गोइंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अंबरनाथ। सो जब आप गूगल मैप पे आप लोकेशन वाइज भी देखेंगे शिवखोरी कहाँ पे है और अंबरनाथ कहाँ पे है, दीज आर टू एक्सट्रीम एंड्स। सो ये एक केव के अंदर केव थी जो शिव जी को कनेक्ट करती थी। सो ये क्यों कनेक्ट करती थी? जो फर्स्ट पार्ट था वो सती का था, एंड जब फीमेल एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में आई है, शिव जी हैज़ मैरिड मल्टीपल टाइम्स, बट जो फाइनल फीमेल फॉर्म थी जिसमें डिवाइन एनर्जी जो स्टेबल हो पाई, वो थी पार्वती जी। सो पार्वती जी एंड शिव जी यूज्ड टू go and meditate in शिवखोरी एंड अंबरनाथ ऑल्सो। सो वो ये उनका इनसाइड एरिया था जहाँ पे वो मेडिटेट करते थे और अपनी तंत्र विद्या साझी करते थे एक दूसरे से। सो जब आप खुद इसके बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ोगे या थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, यू विल गेट टू नो, यू विल बी मेस्मराइज कि इतना कुछ है जो हमने देखा नहीं है या जो हमें पता नहीं है। एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, आप जब भी किसी भी एनर्जी सेंटर में या किसी भी टेंपल में या किसी भी केव में जहाँ पे कोई सिद्ध पुरुष रहा हो, वहाँ पे जाके दान पात्र में कुछ ना कुछ डाल के आए, क्योंकि वही एक उनके लिए भी सपोर्ट है, उस एरिया के लिए भी वही एक सपोर्ट है जो उसको डेवलप कर सकता है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप जब भी जाएं 10 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, जिसकी जितनी श्रद्धा है वो दे के आएँ। खाली हाथ कभी ना जाएं और खाली हाथ कभी ना आएँ। सो ये इस पूरी वीडियो की ब्रीफ हिस्ट्री है। Hope you will enjoy this and hope it inspires you to go and visit these places, and you are able to share these places to everyone, so that सबको ये awareness हो कि what treasure we are holding on, कितनी importance है इस चीज़ की, क्या इतिहास है, and क्या knowledge center है हमारे पास। Go and enjoy, and hopefully you will like this video, and hopefully you will share this, and you will keep supporting, and just try to comment and just give your feedback also. But it's a totally messed up video, I know that. So मेरे को पता, next time when I'll go, I'll just try to make a better video and try to capture better things. Till then, goodbye. Hello everyone, so welcome to this vlog. आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद से जम्मू वाया रोड। सो अभी तेल भरा रहे थे, तो तेल में इशू ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है टायर में भरने के लिए। सो आगे व्यवस्था देखते हैं, बाकी मैं आपको आज सीनरीज दिखाता हूँ रात के। सो आपसे मिलते हैं सफ़र पे। होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग एंड कीप लाइकिंग एंड सपोर्टिंग दिस व्लॉग। सो अभी हम राजस्थान में हैं, सुबह हो गई थी, सूरज चढ़ चुका है। धीरे धीरे आगे का सफ़र जारी रखते हैं। 300 किलोमीटर हमने अभी तक पार कर चुके हैं, 10:30 से चल रहे थे। अब देखते हैं आगे का, अब शायद से एक्सप्रेस वे आएगा थोड़ी देर में, देन आई विल शो यू द व्यू अगेन। So this is a suicide point in J&K. People come here and they just decide to quit their lives.
It's a beautiful spot, by the way. And see the beautiful sky. So that's the construction part. Jammu is developing very fast. See the pillars. There's a crane also. Behind my back you can see saffron fields. The next video will have that specific flower which you can see. This whole field is filled with saffron. If you can see, across the road there is also saffron. This is also saffron. So currently I am in Kashmir. I am traveling to Kashmir to see my Devi temple, which is there. That is Kheer Bhawani. So these are the saffron flowers.